آج 10 شعبان بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والو، ماہ شعبان کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، کملی والے آقا پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے میں کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کب ملے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 10 شعبان بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام نہیں پڑھے گا۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، آپ پر رحمتوں اور برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں جن کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، آپس میں محبت کی کمی ہے، یہاں تک کہ فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو ایسی میری تمام بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 10 شعبان بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، اور میرا رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق اور یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رجب رب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ رجب میں بیج بوتا ہے، شعبان میں اس کی بلائی کرتا ہے اور رمضان میں اس کا پھل کاٹتا ہے۔ بیج بونے کا وقت تو گزر چکا، حرمت والا مہینہ، قبولیت والا مہینہ، رب کریم کا مہینہ تو گزر چکا۔ اب شعبان نبی کریم کا مہینہ موجود ہے، رب کے پیارے محبوب آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ موجود ہے۔ شعبان بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، ایک عشرہ تو ہمارے ہاتھ سے گزر چکا، آج اس کا آخری دن ہے۔ شب برات بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے۔ شب برات کی رات ہر بندے کے نامہ اعمال رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اگر آپ شب برات سے پہلے 10 شعبان بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے سے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکلات پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا، اگر آپ کی لاپرواہی، کوتاہی یا جلد بازی سے آپ نے آج یہ چند منٹ کا وظیفہ چھوڑ دیا تو معراج کی رات تو گزر چکی ہے۔ شب برات کی رات جو نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوں گے، یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا مستند وظیفہ، ایک ایسا باوقار وظیفہ اور قبولیت والا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صرف آج کی 5 انگلیوں پر، ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پڑھ لیجئے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ ملا وہ انشاءاللہ آج کی رات مل جائے گا۔ چونکہ کئی سالوں سے رکی ہوئی جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، جو کام کاج ہوتے ہیں، وہ ان کو صرف آج 10 شعبان بدھ کے دن رب کریم سے آپ لوگ گڑ گڑا کے مانگ لیں۔ رب کریم کے یہ نام پڑھنے ہیں، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج 10 شعبان کا میں نے ایک ایک دن گن کر گزارا ہے، انتظار کیا ہے۔ یہ وظیفہ آج میں نے بھی پڑھا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے گا۔ میں نے اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بھی یہ وظیفہ واٹس ایپ کر دیا ہے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب مانگنے کی گھڑیاں ہیں، رب کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں،
अपने घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खातिमा चाहते हैं, तो 10 शबान बुध के दिन रब करीम का ये नाम सिर्फ एक बार अपने हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़कर देख लीजिएगा। मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आप रब करीम से हाथ उठाकर जिस हाजत की इल्तिजा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। मेरा रब इतना रहमान है, इतना करीम है, जब देने पर आता है तो छत फाड़ कर देता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। रब करीम इतना रहमान और करीम है, जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना आमाल देखता है, ख़जानों के मुंह खोल देता है। अगर आप भी ख़जाने लूटना चाहते हैं, अगर आप भी अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज बुध के दिन रब करीम का ये नाम आप लोग बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं या इंडिया या सऊदी अरेबिया या बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने आज बुध के दिन का ये वजीफ़ा लाजमी करना है। जब आपके मुल्क में 10 शाबान बुध का दिन आ जाए, तो आपने हाथ की 5 उंगलियों पर ये वजीफ़ा, ये अमल कर लेना है। और आप रब करीम से जिस हाजत की नियत करके बैठेंगे, मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, फिर ना कहना कि बताया नहीं। अगर आप शाबान के महीने में बुध के दिन चंद मिनट निकाल कर रब करीम का ये सिफाती नाम पढ़ लेते हैं, अपनी हाजत को रख कर ये वजीफ़ा कर लेते हैं, तो यकीन करें मुकद्दर के सितारे चमक जाएंगे। और अगर आप लोग कुछ वक्त निकाल कर रब के सामने अपनी हाजत नहीं रख सकते, ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते, तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। फिर एक वक्त आता है कि बंदा दर दर की ठोकरें भी खाता है, लोगों के ताने भी सुनता है, लोगों की बातें भी सुनता है। फिर मुश्किलात, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, घर के अखराजात बदकिस्मती, तंगदस्ती की तरफ चले जाते हैं। अगर मेरा बस चले, मैं आप में से हर एक के बाजू को पकड़ कर कहूँ कि आज बुध के दिन का ये चंद मिनट का वजीफ़ा हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ लो, आपकी वो हाजत, वो ख्वाहिश जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, आज ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। जो मांगोगे मिलता चला जाएगा। मेरे रब करीम ने चाहा तो आज कोई बे औलाद है, औलाद मांग ले। बेटों वाला है तो नरीना औलाद चाहता है, नरीना औलाद भी मांग लो, तो मेरा रब इंशाअल्लाह अता फरमाएगा। बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ लो। आप कर्जदार हैं, कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, आपके ऊपर करोड़ों का कर्ज है, करोड़ों में मुब्तला है। ये ना सोचिएगा कि करोड़ों का कर्ज कैसे उतरेगा। कर्ज एक ऐसा दलदल है जिससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज बुध के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा रब करीम का सिर्फ एक नाम पढ़ने की देर है। कर्जदारों को कर्ज से निजात हो जाएगी, तंगदस्तों को तंगदस्तियाँ दूर हो जाएंगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद नसीब होगी। अगर आज ना मांगोगे तो फिर कब मांगोगे। इस महीने में रब के फरिश्ते एक एक बंदे का नसीब और तकदीर लिख देते हैं। पूरे साल में आपको क्या होगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, एक एक चीज़ लिख दी जाती है। और जो बंदा 10 शाबान बुध का दिन लापरवाही से ये वजीफ़ा नहीं पढ़ेगा, फिर वो पूरा साल रब की रहमतों से महरूम रह जाता है। अल्लाह वालों, अगर आप इस वजीफ़े की कदर व कीमत नहीं जानते और आप लोग इस वजीफ़े को नहीं पढ़ते, तो यकीन करें बहुत खसारा होगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि आज अगर कोई मायूस हो चुका है, आज कोई डिप्रेशन का शिकार है, आज कोई मौत को तरजीह देना चाहता है, तो वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर बुध के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर देख ले। लोग बहुत से वज़ाइफ, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से अमाल आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद आप तक वो मुस्तनद वजीफ़ा, वो अमल लेकर आना है जिनका कोई वजूद है, जिनको बेशुमार लोगों ने पढ़ा है, जो बेहद आजमूदा अमल है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा।
इस घर से तंगदस्तियाँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, रुकावटें हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह पाक ने चाहा तो ख़त्म हो जाएंगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज बुध के दिन रब्बे करीम का ये नाम हाथ की 5 उंगलियों पर 5 बार पढ़कर देख ले। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। सबसे पहले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप लोगों को बेहतर लगे आप लोग उस दुरूद पाक को पढ़ सकते हैं। एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पे आपने अपने मकसद की नियत करनी है। दुरूद पाक पढ़ते ही अपनी आंखों को बंद कीजिए और रब्बे करीम से आपने जो भी मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, अपने मकसद की नियत करके बैठ जाएं। आपको रिस्क चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको कामयाबियाँ चाहिए, आप कर्जदार हैं, मनपसंद घर चाहते हैं, नई गाड़ी चाहते हैं, आप ख़जानों के मालिक बनना चाहते हैं, आज जो भी मांग सकते हो मांग लीजिए। इसलिए क्योंकि शाबान के महीने में रिस्क की तकसीम होती है, इसी महीने में नसीब लिखा जाता है, इसी महीने में मांगने वालों को ख़जानों का मालिक बना दिया जाता है। आपकी जो हाजत है, जो मकसद है, आज मांग लेना, क्योंकि आज मांगने वालों की हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल व मंजूर हो जाएगी। अल्लाह वालों, मकसद की नियत करते ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही आंखों को बंद कर लीजिएगा और यूँ महसूस कीजिएगा कि दुनिया से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। अब आप रब करीम की बारगाह में बैठे हुए हैं। तवज्जो और ध्यान के साथ पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा रब करीम का एक नाम का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा रब करीम का एक ऐसा सिफाती नाम का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा एक ऐसा बाकमाल अमल है कि जिसको बताया, जिस मकसद के लिए बताया, रब करीम ने रातों रात अमीर व कबीर बना दिया, तकदीर के बंद ताले खोल दिए। दिन के इस अमल को सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जो बंदा ये 3 अमाल करेगा अर्जेंट बेसिस पर, यानी जल्द कामयाबी हो जाएगी। जो मुंह से जो भी निकालेगा वो पूरा हो जाएगा। अगर आप भी रातों रात अमीर कबीर होना चाहते हैं, आज हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द अमीर हो, तो पहले नंबर पर आपने रब करीम का ये एक नाम को पढ़ना है। आपने या करीमू को पढ़ना है। या करीमू, या करीमू, या करीमू आपने या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। या करीमू रब करीम का सिफाती नाम है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है। जब कोई बंदा 10 शाबान बुध के दिन अपने जहन में कोई भी मकसद रखते हुए इस तरीके से, जिस तरह मैं उसको बता रहा हूँ, मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर या करीमू या अल्लाह, या करीमू या अल्लाह को पढ़ना शुरू कर देता है। या करीमू, इससे मेरा रब ऐसी नज़र करम फरमाता है कि मांगने वाले को समझ भी नहीं आती कि रिस्क और दौलत कहाँ कहाँ से आ रहा है। और या अल्लाह, इससे रब की ज़ात मुतवज्जो होती है। आज हम रिस्क की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आज हम नौकरी के लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं। आज हम किसी भी मकसद के लिए जाली पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। आज कमली वाले आका का महीना है। आज सरकार दो आलम का महीना है। आज शबानुल मुअज़्ज़म का महीना है।
आज नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है। या करीमु या अल्लाह को पढ़ने की देर है। आप पर ऐसी नजर करम होगी कि आपको समझ भी नहीं आएगी ये रिस्क और ये दौलत, ये कामयाबियां कहाँ कहाँ से आ रही हैं। या करीमु या अल्लाह, या करीमु या अल्लाह को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। 11 टाइम्स आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह 3 बार हो गया। यानी कि या करीमु या अल्लाह को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार शुमार होगा। इस तरह से आपने इस वजीफे को 11 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरा रब्बे करीम ने चाहा तो आप पर ऐसी नजर करम हो जाएगी कि आप जिस तरफ भी हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। मेरा रब इतना नवाजेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह वालों, या करीमु या अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपकी छोटी सी कोताही से वजीफे को नुकसान हो सकता है। या करीमु या अल्लाह को बताए गए तरीके और तादाद में पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। या करीमु या अल्लाह के फ़ौरन बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। आपने इस कुरानी आयत को हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ना है। ये शाबान की 10 तारीख़ का मुस्तनद और आजमूदा अमल है जिसको बताया रब्बे करीम ने माला माल फरमाया। आपने एक कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 5 उंगलियों पर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ख़ास वजीफ़ा है। तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह वालों, वज़ाइफ तो हर कोई बताता है, लेकिन कामयाबी कैसे होती है, वजीफ़े का फ़ायदा कैसे होता है, दुआएं कैसे कबूल होती हैं, ये कोई नहीं बताता। आपने हाथ की 5 उंगलियों पर पढ़ना है। एक उंगली पर 3 निशान, दूसरे पर 3 निशान, तीसरी पर 3 निशान। इस तरह से 5 उंगलियों पर कुल मिलाकर 15 बार पढ़ना है। 5 उंगलियों पर कुल मिलाकर 15 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब आपकी ज़बान से ये कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निकल रहा हो तो आप रो रहे हों, तड़प रहे हों, सिसक रहे हों, रब्बे करीम से मांगिएगा, ज़िद करके मांगिएगा। आप रब्बे करीम से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते दौरान जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसा भी मांगेंगे, मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। गैबी मदद चाहते हो आप, इस वजीफे की ताकत ये है कि जो आज बुध के दिन सुबह पढ़ेगा शाम तक कामयाब हो जाएगा, जो शाम को पढ़ेगा रात तक कामयाब हो जाएगा। अल्लाह वालों, शाबान का महीना कबूलियत की घड़ियां हैं। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज बुध के दिन को लापरवाही में गुजारेगा। ये मौका बार बार नहीं आता। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, ये मौका हाथ से गुजर जाएगा। पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा कि काश चंद मिनट निकाल कर 10 शबान बुध के दिन 5 उंगलियों पर कुरानी आयत पढ़ ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगली पर 5 उंगलियों पर 15 बार पढ़ना है। और जैसे ही आप लोग हाथ की 5 उंगलियों पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ लें, इस दौरान ना तो किसी से आपने बात करनी है, ना कोई आपसे बात करेगा। अगर आपने अमल के दौरान किसी से बात की तो वजीफ़ा ज़ाया हो जाएगा। दूसरी बात, वजीफ़ा पढ़ते दौरान जितना ज़्यादा हो सके मांगें। जो भी आपकी हाजत है, जो भी मकसद है, दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगिएगा, क्योंकि आप जो भी मांगेंगे वो इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो ज़रूर मिलकर रहेगा आपको। और वजीफ़ा मुकम्मल होते ही आपने मांगना शुरू कर देना है। इनामात लेने का वक्त है, ज़िद करके मांगना। आज 3 अमाल पढ़ने हैं।
पहले नंबर पर रब करीम का आप लोगों ने ये सिफाती नाम पढ़ लिया, या अल्लाह या करीमु। और दूसरे नंबर पे जो आप लोगों ने वजीफ़ा पढ़ना था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये पढ़ लिया। तो आपने तीसरा और आखिरी वजीफ़ा, जो आज का खासम खास अमल है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। आपने अर्श से लटक रही ये कलेमात पढ़ने हैं। जो कलेमात ये हैं, जो लफ्ज़ ये हैं, ये कुरानी अल्फाज हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। आप लोगों ने इन नामों को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही एक हो गया, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही दो हो गए, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही तीन हो गए। इस तरीके से आप लोगों ने सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही को पढ़ना शुरू कर देना है। ये कुरान पाक की वो आयत है जो फरिश्तों का विर्द है। इसको फरिश्ते पढ़ते हैं। ये फरिश्तों की तस्बीह है और ये एक ऐसी ख़ास जमात है फरिश्तों की। जो भी इंसान, जो भी अल्लाह वाला ईमान की हालत में सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, तो आसमान से फरिश्ता ज़मीन पर आता है और उसकी नसीब को लिख देता है, उसकी तकदीर को सवार देता है और उसकी अर्ज़ी को फ़ौरन लेकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। अल्लाह वालों, ये बड़े मुक़द्दस कलेमात हैं। ये जो वक्त है, ये जो घड़ियाँ हैं, ये कबूलियत की घड़ियाँ हैं। इन आप लोगों ने घड़ियों को हरगिज़ भी ज़ाया नहीं करना। अगर आज के दिन आप लोगों ने इन मुक़द्दस अवकात को ज़ाया कर दिया, यकीन करें कुल्हाड़ी आप पैर पे नहीं अपने सर पे मार रहे हैं। अल्लाह वालों, अपनी तकदीर लिखवाने का वक्त है। अभी तक अगर गफलत में हो तो उठो। आज नहीं उठोगे तो क्या अगले साल उठोगे? तो अल्लाह वालों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आ गई होगी। अच्छा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही इसको 11 बार पढ़ना है और उसके बाद आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने हाथ उठा के दुआ मांगना शुरू कर देनी है। लंबी दुआ मांगिएगा, हाजत जितनी मांग सकते हैं मांगिए, जिस तरह मांग सकते हैं मांगिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।